नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ मोनिका। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबरों के साथ। कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां शनिवार रात शुरू हुए 2 एनकाउंटर में 5 आतंकी मार गिराए गए। पुलवामा में हुए एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद का कमांडर जाहिद वानी समेत 4 आतंकी ढेर हुए हैं। इनमें एक पाकिस्तानी भी शामिल है। दूसरा एनकाउंटर बडगाम के चिनार शरीफ इलाके में हुआ। यहाँ एक आतंकी मारा गया है। उसके पास से एक AK-56 राइफल मिली है। आईजीपी कश्मीर के मुताबिक बडगाम जिले के चरारे शरीफ और पुलवामा जिला के नायरा में शनिवार की देर रात तक सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद बडगाम में एक और पुलवामा में 4 आतंकी को मार गिराया गया। साथ ही आपको बता दें कि पिछले साल 2021 में आतंकियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में कुल 100 सफल एनकाउंटर किए गए, जिसमें 44 शीर्ष आतंकवादी समेत कुल 182 आतंकवादी मारे गए। ये जानकारी 31 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने दी थी। दिलबाग सिंह के मुताबिक 2021 में 134 युवा आतंकवादी संगठनों में 72 मारे गए और 22 को गिरफ्तार किया गया था। हम लोगों को 2 जगह से इनपुट मिला था, जिस पर ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जिसमें बडगाम में एक लश्कर तैयबा का लोकल टेररिस्ट मारा गया और पुलवामा में 4 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें जो जाहिद वानी हम सब जानते हैं, जैश का टॉप कमांडर था और इसका भाई भी जो है मीर, जो कि बन प्लाजा अटैक में इन्वॉल्व था, अभी जेल बंद है। और उसी का भाई जाहिद वानी है, 2017 से एक्टिव था, बहुत सारे किलिंग में इन्वॉल्व था, रिक्रूटमेंट में इन्वॉल्व था। और समीर डार के मरने के बाद यह डिस्ट्रिक्ट कमांडर था, इनफैक्ट कि जेश का चीफ था पूरे वैली का। और ये बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ है और मैं सिक्योरिटी फोर्स को, पुलिस को सब मुबारकबाद देना चाहता हूँ इसके लिए। अब मैं जेसी से रिक्वेस्ट करता हूँ। Thank you and good afternoon, ladies and gentlemen. To begin with, I would like to compliment the entire team of security forces which were part of this operation last night under most challenging and trying circumstances. As you're aware that these ops and this particular op was not an isolated operation. This was part of a series of intelligence-based, human intelligence-based operations that have been undertaken in 15 Corps in the past few months. This, of course, with this success, and as IGP Saab has said, we have taken a very important step in neutralizing the threat of Jaish-e-Mohammed in this area. I would like to briefly highlight that with neutralization of Zahid Manzoor Wani, who was the chief of Jaish-e-Mohammed in this entire area, we have actually eliminated one of the masterminds of various IED attacks that have taken place over the years since 2017. And including, as you might recall, in Dunyari and in Pulwama Circular Road, etc. More importantly, he was also involved in recruitment, extensive recruitment of young boys. He misled all of them to their untimely death and caused a lot of anguish to the families and the people who are residing in this area. His elimination, I'm sure, will provide a lot of relief to the residents of the district and indeed in the entire J&K. I would also like to highlight that in the last few months, I'm sure all of you are aware that there have been close to 9 PTs who have been eliminated. There is also an increasing trend that the PTs have been targeting our brothers and sisters, the civilian brothers and sisters, and in that some of the security forces in the past couple of months we have bought certain casualties, and all of them have been as part of making sure that our citizens are safe and secure. And in fact there is a very deliberate effort that we ensure that all of our people who are residing here are given the due security by all of us. Once again, my compliments to the entire team, the RR, JKP and CRPF. I will now request the commanding officer, Colonel Tom, to just briefly take you over some of the events which led to this very important milestone operation. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'll just briefly update you on Operation Naira, which was conducted yesterday and today morning. The input that we had received was from a very credible source.
of a specific movement of 3 to 4 terrorists in the village Naira. Based on that, a swift cordon was launched. A swift operation was launched, and a swift cordon was laid in the general area by a joint team of SF, including Army, JKP, and CRPF. Once the initial cordon was placed, the terrorists subjected the team to very heavy volume of firing. However, at that time, we were not able to retaliate due to keeping in mind the safety of the civilians who were inside the target area. The primary concern was to evacuate the civilians initially, so that the operation can be conducted accordingly. This was done in a very deliberate manner, and once the civilians inside the cordon was evacuated, then the operation was carried out. The 3 terrorists who were hiding inside the target house, they came out, subjected us to very heavy volume of fire, and were neutralized in the initial contact itself. However, the 4th terrorist who was there in the target area was neutralized in a very, very deliberate manner, as has been brought out by GOC and IGP sir. Jahid Manzoor Wani, who was the commander of Jaish-e-Mohammed in the entire area, his neutralization will go a long way in bringing about a lot of relief to the population of Pulwama in future as well. Thank you. Jai Hind. सर एक सवाल है सर, दिन ब दिन जो है मिलिटेंसी का ग्राफ जो है घटता जा रहा है, बड़ी मात्रा में मिलिटेंट मारे जाते हैं, तो ऐसे में इन्फिल्ट्रेशन भी नहीं होती, तो इतना भारी मिकदार में हथियार इनके पास कहाँ से आते तक कब तक इससे? देखिए, जहाँ भी टेररिस्ट का जो हम पहले बोल चुके थे कि पहला बार बिलो 200 आया है, हम लोग पूरा मेहनत कर रहे थे इसलिए कि इस साल इनको 100 से भी नीचे लाएंगे हम लोग। जहाँ तक हथियार की बात है, हथियार आने के बहुत जो आप देखते हैं कि जम्मू से कितने अटेम्प्ट हुआ, 35 अटेम्प्ट हुआ ड्रोन में जो पकड़ा गया है। इसके अलावा बहुत सारे ड्रोन से हथियार आए हैं, बाय रोड भी आता है, कभी इन्फिल्ट्रेशन से उधर से भी आता है, बहुत सारे इस तरह से आता है हथियार। लेकिन हम लोग पूरा इसमें नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हम लोग ह्यूमन इन, टेक्निकल इन, और इसको पकड़ते रहेंगे, न्यूट्रलाइज करते रहेंगे। तो सर एनी कैजुअलिटी फ्रॉम आवर साइड? नहीं। विजय सर, देखने में पिछले 2-3 महीने से देखा जा रहा है कि जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं, लोकल के साथ एफटी मारा जा रहा है विद अमेरिकन ग्रेड वेपन। इज दिस अ चेंज इन द स्ट्रेटजी? बिकॉज़ अर्लियर वी यूज्ड टू सी दैट मोस्टली द लोकल्स और समटाइम्स यू गेट कैच ऑफ एफटी, बट नाउ वी सी लोकल एंड एफटी टुगेदर। आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। लास्ट 2 मंथ में जितना भी इनकाउंटर हुआ उसमें कहीं 2 एफटी मारा गया, कहीं 1 मारा गया। ये हमारे लिए अच्छी बात है। विंटर में एफटी हाई रीचेस से नीचे आता है और गांव में आता है, फिर गांव वाले से सिविलियन से हमको खबर मिलता है, इसका ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, एफटी मारा जाए। तो वहीं राजस्थान के जयपुर में महिला विंग की वाइस प्रेसिडेंट ललिता कुच्छल ने कहा कि महिलाओं को उद्योग से जोड़ने की बात हमेशा की जाती है, लेकिन धरातल पर अभी भी काम करने की जरूरत है। उन्होंने सुझाव दिया कि महिला उद्यमियों के लिए सिंगल महिला विंडोज स्थापित हो, जिसमें स्टाफ भी महिला हो, ताकि महिला उद्यमी सहज और आसानी से व्यापार कर सके। कई बार सिंगल विंडो पर पुरुष कर्मचारी और अधिकारी के व्यवहार के चलते महिला उद्यमी अपनी बात ठीक से नहीं समझा सकती है। सरकार महिला उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रियायती दर पर जमीन देती है, इसमें महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाए, ताकि कोई भी महिला उद्यमी अपना उद्योग शुरू करे तो उसे जमीन सस्ती दर पर मिले। इसके साथ नियमों को भी सरल किया जाए। महिला उद्यमियों के लिए अलग से सेल बने, जिससे ज्यादा स्टाफ महिला ही हो। महिलाएं अपना स्टार्टअप तो शुरू करना चाहती हैं, लेकिन उसे बैंकिंग नियमों की जानकारी नहीं होती। हर जिला स्तर पर सेल हो तो उन्हें वहां पर बिजनेस से जुड़ी हर जानकारी मिल सकती है। तो वहीं राजस्थान के जोधपुर जिले के शेरगढ़ एसडीएम को सांसद व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पाली सांसद पीपी चौधरी ने भरी बैठक में जमकर फटकार लगाई। दरअसल गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन में सार्वजनिक मंच पर एसडीएम ने पूर्व सांसद की तारीफ की थी, साथ ही मौजूदा पाली सांसद को फील्ड में इनएक्टिव बताया था। इसी बयान पर सियासी बवाल हो गया है। दोनों नेताओं ने कलेक्टर से एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। पाली सांसद पीपी चौधरी ने तो यहां तक कह दिया कि जूते चाटने का इतना ही शौक है तो पार्टी ज्वाइन कर लो और नौकरी छोड़ दो। गजेंद्र सिंह शेखावत ने एसडीएम को फटकार लगाते हुए कहा कि आप पब्लिक प्रोग्राम में खड़े होकर सांसद को पासिंग मार्क्स दे रहे हो, फिर भी आप नौकरी कर रहे हो, आपकी हिम्मत कैसे हुई? सरकारें बदलती रहती हैं, ये सरकार भी साल भर बाद बदल जाएगी, तुम्हें अभी 20 साल नौकरी करनी है। कमाल हो गया कि जो आप पब्लिक प्रोग्राम में खड़े होकर के सांसद को पासिंग मार्क्स दे रहे हो।
और फिर भी आप नौकरी कर रहे हो। तो क्या इंटेंशन था आपका? हाउ डेयर, आपने कैसे कहा कि आज के जो प्रेजेंट सांसद तो आते ही नहीं है, पुराने सांसद आते हैं? आपको अटेंडेंस रजिस्टर रखने के लिए बनाया हुआ है वहां पे? कैसे हो गया स्लिप ऑफ टंग? दिस इज ऑल इंटेंशनल मिस्टर एसडीएम। ये जो है ना, आप ये अभी नौकरी पे पद पे रहने की लालसा में आप लोग जिस तरह के कृत्य करते हो, ये सरकारें स्थायी नहीं होती हैं। ये सरकार 12 महीने बाद में, 1 साल बाद में बदल जाएगी। तुमको अभी 20 साल नौकरी करनी है। फिलहाल के लिए हमारी इस 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। नमस्कार।